Hello everyone and welcome back to the channel. So guys, we are back with another session for your UPSC CSAT comprehension practice, and in this session we'll be practicing some previous year questions from the year 2013. So guys, year by year we'll be covering all the previous year questions in these sessions, and I'm sure these sessions will definitely help you. So guys, if you're new here, or if you're if you're beginning out with your journey for your UPSC preparation, we have the best thing available for you. So guys, this is a comprehensive CSAT guidebook which includes strategy, sources to syllabus, everything that you need to know about every subject that there is in your CSAT exam, and this is absolutely free of cost. So the link of this ebook is given in the description of the video. You can go and download this ebook and start your preparation and start your journey ahead. And we promise to prepare you, through such helpful material for you. So let's begin, guys. So we have two passages today, level 2, level 3 passages. Easy, not very difficult, but still we need to understand these short passages are very economical and very effective in the exam, because when you prepare and when you answer such passages with accuracy, you get to your desired score, right? So first what we need to do is we need to look at the questions, as I've always reiterated. So first question is, it was pointed out to the lady that she should walk on the pavement because she was okay. So I think this was a story. This is a story based passage. The lady refused to move from the middle of the street because. So why was she? Why it was pointed out to the lady why she should walk on the pavement. Why the lady refused to move from the middle of the street, and third, the old lady failed to realize that. So we have to look for these reasons. So let's read the passage. A stout old lady. स्टाउट ओल्ड मतलब बूढ़ी वजनदार, स्टाउट उसको बोलते हैं छोटे कद की लेकिन वजन थोड़ा ज्यादा होना, उसको स्टाउट बोला जाता है. तो अ स्टाउट ओल्ड लेडी वाज वॉकिंग विद हर बास्केट डाउन द मिडल ऑफ अ स्ट्रीट इन Petrograd, to the great confusion of the traffic. So there was a stout, that means there was a old lady, एक बूढ़ी औरत, मतलब वजन थोड़ा ज़्यादा था. वो अपनी बास्केट हाथ में लिए और एक रोड के गली के बिल्कुल बीच में चल रही थी पेट्रोग्राड में, टू द ग्रेट कन्फ्यूजन ऑफ द ट्रैफिक, क्योंकि उसको ट्रैफिक समझ नहीं आ रहा था, ट्रैफिक से वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी. एंड नो स्मॉल पेरिल टू हर सेल्फ, और वो खुद के लिए भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, तो ट्रैफिक वालों के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो रोड के बीच में चल रही थी और उसको खुद को भी बहुत दिक्कत आ रही थी. इट वॉज पॉइंटेड आउट टू हर दैट द पेवमेंट वॉज द प्लेस फॉर फुट पैसेंजर्स, कि उनको कहा गया, उन लेडी को, कि पैदल चलने वालों को, लोगों के लिए पेवमेंट है, जो जगह बनाई है रोड के साइड में, वहां पे पैदल लोगों को चलना है. बट शी रिप्लाइड, आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई लाइक. लेकिन उसने जवाब दिया, ओल्ड लेडी ने, कि मैं जहाँ चाहूंगी वहां चलूंगी. वी हैव गॉट लिबर्टी नाउ. और ये उसका जवाब था कि अब हमें आज़ादी मिल चुकी है. तो आज़ादी है, तो वो कह रही है कि मैं गली के बीच में चलूंगी, रोड के बीच में. It did not occur to the dear lady that if liberty entitled the foot passengers to walk down the middle of the road, it also entitled the taxi driver to drive on the pavement, and that the end of such liberty would be universal chaos. तो अब उस लेडी को, अब ऑथर कह रहा है, उस लेडी को समझ नहीं आया कि अगर पैदल लोग अगर रोड के बीच में चल सकते हैं, फिर टैक्सी वालों को भी मतलब आज़ादी है कि वो पेडेस्ट्रियन उस पे पेवमेंट पे टैक्सी चलाए. तो ऐसे चलेगा तो फिर तो हर जगह मतलब केओस हो जाएगा, त्राही त्राही हो जाएगी. तो ये उसने कहा है कि इट डिड नॉट अकर टू द लेडी दैट इफ लिबर्टी entitled the foot passenger to walk down the middle of the road, it also entitled the taxi driver to drive on the pavement, and that the end of such liberty would be universal chaos. राइट, हर जगह केओस हो जाएगा. एवरीथिंग वुड बी गेटिंग इन एवरीबडी एल्सेस वे, कि हर कोई चीज़, हर कोई इंसान एक दूसरे के रास्ते में अड़ने लग जाएगा. एंड नो बडी वुड गेट एनी वेयर, और कोई कहीं नहीं पहुंच पाएगा. इंडिविजुअल लिबर्टी वुड हैव बिकम सोशल एनार्की, और इंडिविजुअल लिबर्टी क्या बन जाएगी, एक सोसाइटी की एनार्की बन जाएगी. अगर देखो सच बात है, अगर मैं चाहूँ कि जो मेरे मन में आए वो मैं करूँ, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आज़ाद हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरों के लिए परेशानी क्रिएट करूं. उसके लिए भी नॉर्म्स हैं, मेरी आज़ादी मेरे तक सीमित है, वो दूसरों को इंक्रोच ना करे, ये कहना चाह रहा है पैसेजेस में, राइट. तो अब क्वेश्चन देखते हैं गाइस. इट वाज पॉइंटेड आउट टू द लेडी दैट शी शुड वॉक ऑन द पेवमेंट बिकॉज शी वाज अ पेडेस्ट्रियन, शी वॉज कैरिंग अ बास्केट, शी वॉज स्टाउट, और शी वॉज एन ओल्ड लेडी. नहीं, द राइट आंसर इज कि उसको पेवमेंट पे चलना चाहिए क्योंकि वो एक पेडेस्ट्रियन है, और पेडेस्ट्रियन के लिए अलग जगह बना रखी है उन्होंने पेवमेंट वाली, और वहां पे उसको चलना चाहिए. ये दिया भी, इट वॉज पॉइंटेड आउट टू हर दैट द पेवमेंट वॉज द प्लेस फॉर द फुट पैसेंजर्स to walk, right. Second question, the lady refused to move from the middle of the street because she was not afraid of being killed. She felt that she is entitled to do whatever she liked.
She did not like walking on the pavement. She was confused. The lady refused to move from the middle of the street. कि उसने हटने से मना कर दिया क्योंकि वो मरने से नहीं डरती थी कि, या उसे लगता था कि उसका जो मन करे वो कर सकती है, या उसको पेमेंट में चलने का मन नहीं था, या कंफ्यूज थी वो तो आई थिंक द करेक्ट आंसर इज शी फेल्ट दैट शी इज एंटाइटल्ड टू डू वट एवर शी लाइक। ये उसके आंसर से पता चलता है आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई लाइक, जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ जाऊंगी मैं। वी हैव गॉट लिबर्टी नाउ, कि अब हमें आज़ादी मिल चुकी है। तो उसे लगता था कि, उसे लग रहा था कि वो जहाँ चलना चाहे वो चल सकते हैं, बिकॉज वो उसकी आज़ादी है। सो दैट इज द राइट आंसर। And another question, the old lady failed to realize that she was not really free. Her liberty was not unlimited. She was an old person. Yeah, roads are made for motor vehicles only. She failed to realize that her liberty was not unlimited. उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि उनकी आज़ादी वो अनलिमिटेड नहीं है, कि जो उसका मन करे वैसा नहीं है कि वो हर चीज़ वो कर सकती है। ठीक है, अगर यूँ आज़ादी है तो मैं कुछ भी कर दूंगा यार, बैंक लूट लूंगा, बोलो मैं आज़ाद हूँ, मैं कुछ भी करूँ, चाहे मैं किसी को मार दूंगा, तो वो आज़ादी नहीं होती ना। आज़ादी मेरे अपने तक सीमित होती है मेरी आज़ादी, दूसरों को तक वो नहीं पहुंचनी चाहिए, दूसरों को इंक्रोच नहीं करना चाहिए। सो द ओल्ड लेडी फेल टू रियलाइज दैट हर लिबर्टी वॉज नॉट अनलिमिटेड। ठीक है, कि अनलिमिटेड नहीं है उसकी लिबर्टी। ठीक है, उसको भी कहीं सीमा पता होनी चाहिए कि कहाँ मेरे सोशल फ्रीडम आती है और कहाँ मेरी पर्सनल फ्रीडम या पर्सनल लिबर्टी तक मैं सीमित रहती हूँ। सो दैट वाज द पैसेज। एक अच्छा मैसेज कन्वे किया उसने सभी के लिए वैसे, कि अपनी लिबर्टी को अपना एक वो वेपन मत बनाओ, या ऐसे सिचुएशन मत क्रिएट करो जिसमें दूसरों को परेशानी हो। राइट, चलो दूसरे पैसेज पे चलते हैं गाइस। मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स अंडर द सी डू नॉट गेट कंप्लीटली डिकम्पोज्ड बिकॉज दे, अच्छा ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, शायद मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स के ऊपर है। और दूसरा क्वेश्चन है सेडिमेंट्री रॉक लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल डिपॉजिट्स बिकॉज। तो एक तो हमें सेडिमेंट्री रॉक से तेल क्यों बनता है वो ढूंढना है, और एक समुद्र के नीचे मिनरल ऑयल डिपॉजिट अच्छे से या पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाते, उसका रीज़न ढूंढना है। तो अब पढ़ते हैं पैसेज हमारा। देखो इस क्वेश्चन पढ़ने से ना आपको कॉन्टेक्स्ट मिलता है कि आप किस बारे में पढ़ने वाले हो पैसेज में। अब मुझे पता लगे मिनरल ऑयल की बात हो रही होगी, समुद्र की बात हो रही है इसमें, राइट, डिकम्पोजिशन की बात हो रही है, और ये तेल कैसे बनता है उसकी बात हो रही है। तो मुझे इतना पता लग गया है सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से, तो अब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ अपना पैसेज पढ़ने के लिए, राइट। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं अपनी अपनी सही अप्रोच बनाना व्हेन यू आर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं गाइस। क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ एज थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड। जो क्रूड ऑयल होता है ना, क्रूड मिनरल ऑयल जो धरती से निकलता है, समुद्र से निकलता है, वो थिक ब्राउन या एक ब्लैक लिक्विड होता है विद अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, इसमें बहुत गंदी स्मेल आती है। तो crude mineral oil comes out of the earth as a thick brown or black liquid with a strong smell. It is a complex mixture of many different substances. ये बहुत सारी different substances के मिक्सचर से बना होता है। क्रूड ऑयल जो होता है, रॉ जो होता है अभी, ठीक है, कच्चा तेल जिसको हम बोलते हैं, बाद में वो रिफाइन होता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट, लेकिन इनिशियली वो ऐसा होता है। तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेज ईच विद इट्स ओन इंडिविजुअल क्वालिटीज़, और हर एक की अपनी खुद की क्वालिटीज़ होती हैं। मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्बिनेशंस ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इन वेरिंग प्रोपोर्शंस। और ज़्यादातर जो उसमें अलग अलग तरह की वेराइटी होती है उसमें मोस्टली हाइड्रोजन और कार्बन की अलग अलग प्रोपोर्शंस होती हैं। सच हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो फाउंड इन अदर फॉर्म्स सच एज बिटुमिन, एस्फाल्ट एंड नेचुरल गैस। और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स और तरह के पदार्थ में भी मिलते हैं, जैसे बिटुमिन, एस्फाल्ट हो गया, बिटुमिन हो गया, और नेचुरल गैस में हो गया। नाउ मिनरल ऑयल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कार्कसेस ऑफ टाइनी एनिमल्स। कार्कसेस क्या होता है? उनके ढांचा, जो हड्डियों का ढांचा जो बच जाता है, ठीक है, स्केलेटन, जिससे ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन होता है, उनके कार्कसेस होते हैं। तो जानवरों के शरीर के हड्डियों के ढांचे को क्या कहा जाता है गाइस? कार्कस। ठीक है, तो ये पता होने चाहिए ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको, क्योंकि ये हेल्प करते हैं आगे। तो मिनरल ऑयल ओरिजिनेट्स, जो मिनरल ऑयल है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? फ्रॉम द कार्कसेस ऑफ टाइनी एनिमल्स एंड फ्रॉम प्लांट्स दैट लिव इन द सी। तो मिनरल ऑयल कहाँ से बनता है? जो जानवर, जो छोटे छोटे मछलियाँ और ये सब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी ढांचों से, और जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं समुद्र में, उनसे मिनरल ऑयल बनता है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, सदियों से, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, दीज डेड क्रीचर्स फॉर्म लार्ज डिपॉजिट्स अंडर द बेड सी। और मर के कहाँ जाएंगे? ढांचे नीचे जाएंगे, तल पे। तो क्या होता है, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के दौरान क्या करते हैं, ये डेड क्रीचर्स जो होते हैं वो बहुत बड़ा एक डिपॉजिट बना लेते हैं समुद्र के तल पे। एंड ओशन करंट्स कवर देम विद अ ब्लैंकेट ऑफ सैंड एंड सिल्ट। और ओशन करंट जो होती है, पानी का बहाव जो होता है, वो मिट्टी और सिल्ट, और जो मतलब जो जैसे होता है ना, पत्थर से टूट के जो छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स या स्टोन पार्टिकल्स जो होते हैं, सैंड एंड सिल्ट, वो पानी के बहाव से उसके ऊपर लाके एक ब्लैंकेट बना देता है पानी उसका। तो नीचे क्या हो गया? हड्डियों का ढांचा और पेड़ हो गए, और ऊपर क्या कर दिया? पानी ने धीरे धीरे
मिट्टी की लेयर बना दी उसके ऊपर, ठीक है, एक ब्लैंकेट बना दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एज दिस मिनरल हार्डन्स, ये जो मिनरल है जब ये हार्ड हो जाता है, ठीक है, इट बिकम्स सेडिमेंट्री रॉक। तो ऊपर जो परत होती है ना, ये जो सैंड एंड सिल्ट था, ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर तो होता ही है नीचे, पानी के नीचे, आप सबको ये पता होना चाहिए, द लोअर यू गो द हायर वुड बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो ये नीचे जो मिट्टी और ये जो ये सब, इससे जो ब्लैंकेट बनता है, इसके प्रेशर से ये क्या बन जाता है, ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। तो एज दिस मिनरल हार्डन्स इट बिकम्स सेडिमेंट्री रॉक एंड अफेक्टिवली शट्स आउट द ऑक्सीजन। और जब वो पत्थर बन जाता है तो नीचे वो ऑक्सीजन नहीं जाने देता, सो प्रिवेंटिंग द कंप्लीट डीकम्पोजिशन ऑफ मरीन डिपॉजिट्स अंडरनीथ। ये उसने क्वेश्चन पूछा था ना कि किस वजह से कंप्लीटली डीकम्पोज नहीं हो पाते, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती सेडिमेंट्री रॉक की वजह से। तो ये एक आंसर है मेरा। एज दिस मिनरल हार्डन्स इट बिकम्स सेडिमेंट्री रॉक एंड अफेक्टिवली शट्स आउट द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जाने नहीं देता, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना डीकम्पोजिशन कैसे होगा, प्लांट्स का, कार्कसेस का जो नीचे दबे हुए हैं उनके। सो प्रिवेंटिंग द कंप्लीट डीकम्पोजिशन ऑफ द मरीन डिपॉजिट्स अंडरनीथ। द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, जो लेयर्स बन जाती हैं ऐसे, बिकम थिकर एंड हैवियर, और ऐसे करते करते जो सेडिमेंट्री रॉक की लेयर है वो और बड़ी और मोटी और भारी होती जाती हैं। So the layers of sedimentary rock become thicker and heavier. Their pressure produces heat, और उनके प्रेशर से गर्मी पैदा होती है, बहुत गर्म हो जाता है, which transforms the tiny carcasses into crude oil in a process that is still going on today। और इस हीट प्रोड्यूस होने से जो जो नीचे कार्कसेस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं तेल में, ठीक है, दे कन्वर्ट इनटू क्रूड ऑयल इन अ प्रोसेस दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। और ये सदियों से चलता हुआ प्रोसेस है, ऐसे नहीं है कि 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 10 साल का काम है, ये सालों सालों, मतलब सैकड़ों हजारों सालों का काम है। तो ऐसे इतने टाइम लग के ये ऐसे क्रूड ऑयल बनता है। तो इसने पूरा प्रोसेस समझाया यहाँ पे। अब क्वेश्चन देखते हैं, इस मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स अंडर द सी डू नॉट गेट कंप्लीटली डीकम्पोज्ड। यहाँ पे हमने किया था ना, कंप्लीट डीकम्पोजिशन नहीं होता, क्यों? बिकॉज अब उसने ऑप्शन देखते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली वॉश्ड बाय ओशन करंट्स, कि उन पे पानी का बहाव लगता रहता है, नहीं। बिकम रॉक एंड प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम एंटरिंग देम, कि मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स अंडर द सी, क्योंकि वो ऊपर पत्थर बन जाता है और ऑक्सीजन नहीं जाने देता। थर्ड, कंटेन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, नहीं। आर कार्कसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइंग इन सलाइन कंडीशंस, क्योंकि कार्कसेस जो हैं वो सलाइन कंडीशंस में पड़े होते हैं, तो इसलिए उनको डिकम्पोज नहीं होता। नहीं, सलाइन कंडीशंस की कहीं बात नहीं हुई, आई थिंक, बिकॉज इट बिकम्स रॉक सॉलिड एंड इट प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम एंटरिंग देम। तो ये उसने बोला है कि दे बिकम सेडिमेंट्री रॉक, ये मिनरल जो हार्डन होता है सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है, एंड इफेक्टिवली शट्स आउट द ऑक्सीजन, सो प्रिवेंटिंग द कंप्लीट डीकम्पोजिशन ऑफ मरीन डिपॉजिट्स अंडरनीथ। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। एंड आगे बढ़ते हैं। सेडिमेंट्री रॉक लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल डिपॉजिट्स। सेडिमेंट्री रॉक से ऑयल डिपॉजिट कैसे क्यों बनते हैं? बिकॉज देयर आर नो सलाइन कंडीशंस बिलो इट, नीचे सलाइन कंडीशंस नहीं होती इसलिए। इट अलाउज सम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन टू एंटर द डेड ऑर्गेनिक मैटर बिलो इट, नहीं। Weight of overlying sediment layers causes the production of heat, yes, and it contains the substances that catalyze the chemical reaction required to change dead organisms into oil, नहीं। ये देखो इसने दिया होता clearly, the layers of sedimentary rock becomes thicker and heavier and their pressure produces heat which transforms the tiny carcasses into crude oil। तो I think the correct option is weight of overlying sedimentary layers causes the production of heat, and that is how sedimentary rock leads to formation of oil deposits। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से अगर आप हर चीज़ को पढ़ के और समझ के अच्छे से क्लियर करके अगर आप इस तरह से अपने आंसर्स को थर्ली एलिमिनेट करके अपने ऑप्शंस को और अपने सिलेक्शन को चूज करते हो, तो यू विल ऑलवेज बी एबल टू गेट द राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको हमारा ये प्रोसेस, ये आपका जो पेडागॉजी है, ये पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि इस हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस इन आर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर सीसैट प्रिपरेशन। सो जस्ट इन अंडर 100 hours we are aiming to prepare you for your CSAT exam. So just in 100 hours, that means 75 days, if you only spend 1 hour a day, so next 2.5 months, you will be thoroughly and completely ready for your CSAT exam. Now, in this comprehensive course, we have provided you concept classes along with downloadable PDFs for the classes. Then there are sectional tests and full length tests which you need to practice. Then there are weekly live doubt sessions conducted by us to help you with any query that you have. And before the exam, we will also be conducting live revision classes for you. And you know the faculty members, you know Vishnu sir, you know me, and you know Meghna ma'am. So if you're new here, if you wish to join, if you're thinking of joining any CSAT course,
This is a one-stop solution for your CSAT preparation. So come join us and get benefited in this journey ahead. And guys, if you want the PDF of these sessions and many such more sessions, you can join our Telegram channel, the link for which has been given in the description of the video, and the link for our course has also been given in the description of the video, by the way. So go check out the course and look at the course offerings and the feedbacks of the students who have taken the course and who are preparing right now for this exam through our courses. So go check it out, and it will definitely benefit you. And guys, if you have any doubts, if you have any queries, please feel free to contact us on this number, that is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. So I'll see you again tomorrow with more such sessions from the previous year paper, and I hope these sessions are helping you out in your journey ahead. So do let us know your feedbacks in the comment section. And guys, if you liked the session, please don't forget to press the like button and share if you wish to in your peers, and with someone who really needs it. So thank you so much once again, guys. Keep on working hard, keep on working in the right direction, stay motivated, and I'm sure you will do very well in your exam. So having said that, I'll take your leave for today. Thank you so much once again, and happy learning to all of you.